Every year, India generates 62 million tons of waste. That's roughly the weight of 10 crore adult elephants every single year. Mumbai alone generates around 7,000 tons of waste every day. Most of it ends up in landfills that were never built for a city this size. That cardboard box from last week's delivery, if it ends up in the wrong bin, its journey ends up here. We live in the golden age of online shopping, and if you're anything like me, you've gotten very good at hiding the boxes before your family starts asking questions. One week, I let them pile up, and by Sunday, I had this. I had no idea what to do with any of it or what actually happens once it goes in the bin. So I decided to find out, and I found a business built to fix something broken for a very long time. हम घरों में जितने भी स्क्रैप आते हैं जो रिसाइक्लेबल हैं, हम हर एक स्क्रैप बाय करते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक, कार्टन्स, ई वेस्ट, ग्लास एक्सेट्रा। आपके घर पर कोई भी रिसाइक्लेबल्स है, आपको डोर स्टेप पिकअप देंगे एंड वो पूरा का पूरा स्क्रैप आपसे खरीद कर उसे रिसाइकिल करेंगे। Shreyas Jalpur and Henik Gala grew up in Thane, childhood friends. Their idea was simple. Everything had gone online, but scrap hadn't. So they built ScrapG. Book a pickup, they arrive in 3 to 4 hours, weigh your material, pay you via UPI on the spot. My name is Shreyas Sanjana Jalpur. So we started this company around 5 years back. मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, proposed me this ScrapG as a startup कि यार कुछ स्क्रैप में कुछ करते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, Zepto ऑनलाइन है, स्विगी, इंस्टामार्ट, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है। आज फिंगर टिप्स पे आज हमारी पूरी दुनिया है। ये वेस्ट अभी भी नेग्लेक्ट क्यों किया हुआ है लोगों ने? तब हमने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन स्क्रैप का स्टार्ट किया जाए। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन लोग हमारे साथ स्लॉट बुक कर सकें, हम उनका जो भी स्क्रैप है रिसाइक्लेबल है हम लेकर रिसाइकलिंग सेंटर्स तक पहुँचा सके। Most of what we throw away still has value. Cardboard, paper, plastic, metal. These are materials that can be recovered, recycled and used again. That's good for the environment, but it's also good economics. Recycling existing material is often cheaper than extracting and processing new resources from scratch. But because India doesn't recover enough recyclable material, we actually import steel, paper and plastic scrap from other countries, while the same material is discarded in landfills here. Every ton recycled instead of landfilled can prevent 1 to 2 tons of CO2 emissions. You will be shocked कि जहाँ पे अगर आप मेरे पीछे ड्रम्स देख रहे हैं, क्रेट्स देख रहे हैं, FMCG प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इन सब की वैल्यू ऑलमोस्ट 55 to 65 पर केजी रुपीस में आती है। पर मंथ आराम से 8 से 10 किलो स्क्रैप कोई भी घर में ऑब्टेन हो सकता है। एंड इमेजिन कीजिए पर हाउस होल्ड अगर 600 to 700 का पर मंथ का अगर वेस्ट जनरेट करता है, वो भी इतना स्क्रैप डिस्कार्ड करने के बाद, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके घर पर जो स्क्रैप है, हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे कैफेज में, हमारे रेस्टोरेंट्स में जितना स्क्रैप है उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। Every piece of dry waste gets sorted by material type, grade, quality. One pile of scrap can actually lead to dozens of commodities, each with its own buyer. ScrapG handles 8 categories. The cleaner the material, the more it's worth and the more efficiently it can be recycled. हर एक प्लास्टिक के अंदर टाइप्स हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर टाइप्स हैं, कार्टन्स के अंदर टाइप्स हैं, बुक्स के अंदर टाइप्स हैं, ई वेस्ट के अंदर टाइप्स हैं। आपको बस लगता है कि वेस्ट ऊपर से ये कार्टन्स है, ये ई वेस्ट है, ये प्लास्टिक है, बट उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइप्स हैं। ये वैसी कुछ बॉटल है जो हमारे घरों में पाई जाती है। इसके सबके पीछे एक कोड होता है। इस कोड को है 2 नंबर कोड HDPE। तो इसका मतलब ये HDPE में जाएगा। ये प्लास्टिक का टाइप है जो HDPE है। मोस्टली ये जो टाइप होता है वो FMCG प्रोडक्ट्स में होता है और जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होता है। इस बॉटल को कौन नहीं जानता? ये हमारे घरों में हमेशा होती है और हम इसे प्लास्टिक की पानी की बॉटल बोलते हैं, बट इसे एक्चुअली PET बॉटल कहते हैं। PET बॉटल बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ये हमें मिलती है बिकॉज पानी का कंजम्पशन स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमारी फूड ग्रेड प्लास्टिक होती है, जिसके पीछे ये अगर आप नंबर देखेंगे तो नंबर 5 लिखा होता है। इस 5 नंबर का मतलब है ये PP प्लास्टिक है। और ये PP की खास बात ये है कि ये भी काफ़ी इजीली रिसाइकल हो सकता है। So from your door, they go to the collector, and from there they go to the segregation facility where they are sorted, graded, compressed into bales. Those bales then go to a specialist recycler. PET plastic becomes pellets. Cardboard gets pulped into raw paper. Each material has its own processor, its own output. That output goes to a manufacturer.
अब आता है हमारे स्टोरेज फैसिलिटी पे, जहाँ पे हम प्लास्टिक स्टोर कैसे करते हैं और उस स्टोरेज में कैसे हम एफिशिएंसी लाते हैं। ये सेक्शन है हमारा एलडी का। एलडी विच मीन्स जहाँ पे हम कई भाषा में इसे पन्नी कहते हैं हिंदी में। ये पन्नी यहाँ पे रहती है जो हमारी पैकेजिंग मटेरियल में होती है। इसमें नंबर 1 की पन्नी होती है, नंबर 2 की पन्नी होती है और कई सारे डिफरेंट टाइप्स की पन्नियाँ आती हैं जिसकी रेट्स काफ़ी अलग है। मूविंग अहेड, दिस इज अ डेडिकेटेड एरिया फॉर पीईटी विच इज आवर प्लास्टिक बॉटल, जिसमें हम पानी पीते हैं। ये आपको लग काफ़ी रहा है, आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बस 350-400 किलो है। 350-400 किलो बेल होने के बाद एटलीस्ट 10 to 12 स्क्वायर फुट में ही आ जाएगा। दिस इज द सेक्शन वेयर हमारे एचडी एंड पीपी आते हैं। आपके जो फूड ग्रेड के प्लास्टिक हैं, एफएमसीजी के प्लास्टिक हैं, ये पूरे के पूरे यहाँ पे स्टोर होते हैं। इसमें सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर एचडी ले रहे हैं तो आपको उसको कलर वाइज सॉर्टिंग करना है। ब्लू, वाइट, नेचुरल, मिल्की, कई तरह के कलर्स हैं, उसमें हमें सेग्रीगेशन करके उसका क्वालिटी मटेरियल बनाना है। पीवीसी पाइप्स, इंटरेस्टिंगली पीवीसी पाइप्स कड़क करके एक मटेरियल होता है जो भंगार की भाषा में कड़क कहते हैं। दिस इज अवर एरिया जहाँ पे हम पीपीसीपी स्क्रैप, जो प्लास्टिक बकेट्स का स्क्रैप है, वो रखते हैं। आपके पेंट के बकेट्स हो गए, एलएलडी जैसे आपके सिंटेक्स की टाकियां हो गई, वो सब कुछ यहाँ पे आती है। The circular economy looks elegant in a diagram, but building it is something else. Plastic is bulky but light. A truck fills on volume before weight. Unit economics takes time. सबसे डिफिकल्ट पार्ट है लॉजिस्टिक्स। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है या कार्टन्स ऐसी चीज़ हैं जो जगह काफ़ी लेते हैं, बट उसे ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो लोगों को जिसे स्टार्ट करना है उन्हें टेम्पो खरीदना होता है। टेम्पो में भी अगर वो 1000 kg का कैपेसिटी वाला है तो उसमें 300-400 kg आप उसमें लोड कर सकते हैं। Before there were apps and startups, there was already a system, and the people who built it informally over generations are still the ones making it work. मेरा नाम अजय प्रताप निंदोजिया है। ये हम लोग का काम है कि मेरे दादा की दादा से करते आ रहे हैं। 70 साल से ऊपर होगा उन लोग का। फिर मेरे पिताजी कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारा सिखाया है उन्होंने। बोला कि कपड़े में अच्छा है कि हम लोग को गाँव जाना आना रहता है तो जॉब भी नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम प्रीति वर्मा है। मैं बहुत साल से पहले कर रही थी। मेरे हस्बैंड यही बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस लॉस होने की वजह से फिर मैं यहाँ पे आई काम करने के लिए। India's informal waste sector employs an estimated 4 million people. Most of them have spent years doing this work without a fixed wage, without benefits, and without security. And yet, every city runs on their labor. Through companies like ScrapG, the system is slowly starting to acknowledge that and give this work the dignity it deserves. छोटा रहे काम या बड़ा रहे, काम में कोई बुराई नहीं है। कुछ गलत काम तो करने नहीं जा रहे। कहीं जा रहे हैं हम लोग चोरी करने के लिए, गंदा काम करने के लिए, ये सब तो नहीं कर रहे हैं। दुनिया को बचाने के लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। डब्बा ही है, उसको उसे भी इधर से उधर पलटी करना है, बदलना ही है उसको। कभी ये नहीं सोचो कि लेडीज हो तो तुम दब के रहो, आदमी के नीचे रहो, ये नहीं। मैं सोचती हूँ कि अपने दम पे करो और अपने दम पे ही रहो, और 1 रुपया कमाओगे तो अपने हस्बैंड को भी साथ में सपोर्ट कर सकते हो और अपना फैमिली भी देख सकते हो। ScrapG started at 12 tons a month. Now they are at 32. Totally, they have redirected 500 tons from the landfills. 60 lakh rupees paid out to households, and their target is 5,000 tons a month across 3 cities. हम बस एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये कर सकते हैं कि हम जितना सेग्रीगेशन हो सके, एचडी, पीपी, पीईटी, इन सबको सेग्रीगेट करें ताकि रिकवरी भी बहुत इजीली हो। बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन में इतना आगे बढ़ जाए हम कि इंडिया में जितनी प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, जितना हम कम कर सके उतना कम करें। I went back to my pile of boxes and I timed it. It just took 10 minutes to sort everything from 1 week of deliveries. Just 10 minutes. Most of what I thought was trash wasn't. Cardboard, paper, clean plastic mailers. All of it has a market and all of it has to go somewhere that isn't a landfill. You're going to get another delivery this week, maybe tomorrow, maybe today. The box is going to land at your door and you're going to have about 3 seconds to decide what to do with it. Now you know what you should be doing next.